Hello students, we have studied about the introduction part of the linear equation in two variable. Now we will do examples of third chapter. अब जो हम लोग ने पिछला वीडियो में पढ़ा था उसका यूज़ करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c/c2. फाइंड आउट वेदर द linear representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident. First example is equation is given as 5x minus 6y plus 8 is equal to 0. 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. We will compare this equation by a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Then we will get a1 is equal to 5, b1 is equal to minus 4 and c1 is equal to 8. And second equation is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. फिर से कंपेयर करेंगे हम लोग. अब देखिए इक्वेशन में a1 की क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा. ऑन कंपेयरिंग विद a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we will get a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to minus 9. Okay, we will find out a1 upon a2. What will value of a1 upon a2? It will be 5 upon 7. What will be the value of v1 upon v2? It will be minus 4 upon 6 and c1 upon c2 will be 8 upon minus 9. As we can see that value of a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है. तो मैंने भी पीछे से बताया था, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि जो दोनों ये पेयर दिए हुए हैं इक्वेशन के वो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज 9x plus 3y plus 12 equal to 0. 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. And second equation is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. We will get a1 is equal to 9 and b1 is equal to 3 and c1 is equal to 12. And here we will get a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 will be 24. We will find a1 upon a2. a1 upon a2 will be 9 upon 18, that is 1 upon 2. b1 upon b2 will be 3 upon 6, it means 1 by 2. c1 upon c2 12 upon 24, it means 1 upon 2. Here we can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. और जब ये सब बराबर होंगे इस केस में लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट. गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट. ओके, अगर सब रेशियो बराबर आ जाए तो जो पेयर दिया होगा वो कोइंसिडेंट होगा. नेक्स्ट इज 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 6x minus 3y plus 10 is equal to 0.
and second equation is 2x minus y plus 9 is equal to 0. Okay, here we will get a1 is equal to 6, b1 equal to minus 3, and c1 will be 10, and a2 will be 2, b2 will be minus 1, and c2 will be 9. So a1 upon a2 will be 6 upon 2. a1 upon a2 will be 6 upon 2, that is 3 upon 1. b1 upon b2 will be minus 3 upon minus 1, that is 3 upon 1, and c1 upon c2 will be 10 upon 9. Okay, here a1 upon a2 और b1 upon b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं है. ऐसा किस केस में होता है? ऐसे किस केस में होगा? पैरेलल होंगी जब लाइंस. गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल. ये तब होगा कंडीशन जब ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज कंप्लीटेड. नोट डाउन. नेक्स्ट वन इज second example. On comparing the ratio a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following equations are consistent or inconsistent. Okay, conditions याद करेगा हुआ है अगर तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे. कंडीशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. सेकंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. अब हम लोग दोबारा से नहीं लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन आप लोग बार बार लिखना होगा. a1 इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू. ओके, वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हम लोग प्लस 8 को यहाँ लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो c1 विल बी माइनस 8. और इसको भी हम लोग चेंज करेंगे. 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो a2 विल बी 4, b2 विल बी माइनस 6 एंड c2 विल बी माइनस 9. नाउ वी विल फाइंड रेशियो a1 अपॉन a2, इट इज़ 2 अपॉन 4, वी विल गेट 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2, what is the value of b1? It is minus 3. And what is the value of b2? It is minus 6. It will be 1 upon 2. And c1 upon c2, what is the value of c1? Minus 8. c2 minus 9, it will be 8 upon 9. As we can see that a1 जो upon a2 है वो b1 upon b2 के इक्वल है, लेकिन c1 upon c2 के इक्वल नहीं है. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So given pair of linear equation is inconsistent. तो जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है. ओके, क्लियर हो गया बात. अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. कॉपी. एग्जाम्पल 2 इज 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0. a1 is equal to 4, b1 is equal to 6 and c1 is equal to minus 24. Second equation is 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Here a2 is equal to 2, b2 is equal to 3 and c2 is equal to minus 12. We will find ratio again. a1 upon a2, 4 upon 2, it will be 2 upon 1. b1 upon b2, it will be 6 upon 3 or 2 upon 1.
C1 upon C2 minus 24 upon minus 12. As we can see that it will also be 2 upon 1. Here A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 all are equal, all are same. So given pair of linear equation is consistent. तो जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट है. ओके, क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अब इसका सेकंड एग्जांपल था ये. नेक्स्ट एग्जांपल इज 9x plus 10y minus 42 is equal to 0. 9x plus 10y minus 42 is equal to 0. And next equation is 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. In this case, what will the value of a1? It will be 9. What is the value of a2? It will be 10. And what is the value of c1? It will be minus 42. What is the value of a2? It will be 9. What is the value of b2? It will be 10. And what is the value of c2? It will be minus 14. Here we can see that a1 upon a2 is 9 upon 9. a1 upon a2 is 9 upon 9. That is, it will be 1 upon 1. b1 upon b2 is 10 upon 10. That is 1 upon 1. c1 upon c2 is equal to minus 42 upon minus 40. That is 3 upon 1. Here we can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not c1 upon c2. जो a1 upon a2 है वो b1 upon b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 upon c2, सॉरी मिस्टेक हुआ है कहीं यहाँ पे, कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन उतारने में. ओके, here it is minus 10. So b2 will be minus 10. minus 10 minus 1. अब यहाँ पे जो है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के ही इक्वल नहीं है. जब तो स्टार्टिंग के इक्वल नहीं है तो तीसरे वाले की जरूरत ही नहीं है हमें. और ये किसकी कंडीशन है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा. तो इस कंडीशन में क्या होगा? कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है. कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है. अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो c1 अपॉन c2 की जरूरत ही नहीं है. a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया. तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 हमारा. Example 3 is for all the real values of C, the pair of equation have a unique solution. Okay, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इक्वेशन दी हैं उनका सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक है. उनका सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक है. अपने आप उसने बता दिया हम लोगों को. यहाँ से a1 आपका हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा आपका -2 एंड c1 विल बी -8. ओके, सेकेंड इक्वेशन इज 5x minus 10y is equal to c. That is 5x minus 10y minus c is equal to 0. Here a2 will be 5, b2 will be minus 10 and c2 will be minus c. Okay, अब given क्वेश्चन में given क्या है? our pair of linear equation, जो ऊपर पेयर दिया हुआ है, हैज यूनिक सोल्यूशन. सोल्यूशन कैसा है इसका? यूनिक सोल्यूशन है. अब हम लोग को पता होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है. हम लोग से कह रहा है वो यूनिक सोल्यूशन है. For all real values of C, the pair of equation have unique solution. चेक करना है क्या ट्रू है फॉल्स है. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे. इसको हटाओ. पहले हम लोग लिखेंगे a1 अपॉन a2. a1 अपॉन a2 1 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -10. दैट इज 1 अपॉन 5. अब
C1 अपॉन C2, इट विल बी -8 अपॉन -C, 8 अपॉन C। ओके, हम लोग देख पा रहे हैं स्टार्टिंग के दो इक्वल आ गए हैं। A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। स्टार्टिंग के दो कैसे आ गए हैं? इक्वल हो गए हैं। और स्टार्टिंग के दो जब इक्वल आ गए तो यूनिक सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग के दो इक्वल आ गए तो कैसा होगा? इसका यूनिक सोल्यूशन होगा ही नहीं। सो गिवन पेयर, जो इक्वेशन दी हुई थी, गिवन पेयर कैन नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए था अगर यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ तो इक्वल आ गया। सो गिवन पेयर कैन नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन, तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। सो यानी कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसने कहा था यूनिक है, यानी कि उसकी बात सही है गलत है? गलत है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल मैं बहुत हल्के करा रहा हूँ जिससे कि सब क्लियर होता रहे। फोर्थ एग्जाम्पल इज इक्वेशन इज 7x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। हम लोग उसे कह रहे हैं एक दूसरा पेयर लिखें जो रिप्रेजेंट कर रहा हो इंटरसेक्टिंग लाइन। इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हो। हम लोग को पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए? A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। जो A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल ना हो। ओके, तो एक हम लोग को कंसीडर करनी पड़ेगी इक्वेशन। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन, अपने मन से कंसीडर कर ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन, और ऐसी इक्वेशन कंसीडर करेंगे कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का जो रेशियो है वो सेम ना है। कुछ भी मान लें, बस रेशियो सेम ना है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए। हम लोग निकाल ले रहे हैं A1 अपॉन A2। यहाँ पे A1 कितना है? A1 है आपका 7, B1 कितना है? -5, C1 कितना है? -4। यहाँ पे A2 कितना है? 9, B2 कितना है? 8 एंड C2 इज -3। A1 अपॉन A2 इज 9 अपॉन A1 अपॉन A2 7 अपॉन 9 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 8। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आया। बस A1 अपॉन A2 था जो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आया। सो क्या हो जाएगा? सो द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय पेयर जो दोनों पेयर से लाइन बनेंगी वो कैसी होंगी नेचर में जब इक्वल नहीं है? इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, क्योंकि जो A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 को इक्वल आया ही नहीं। हमने इस हिसाब से अरेंजमेंट किया। अब दूसरे पार्ट में हमसे कह रहे हैं कोइंसिडेंट हो। कैसी हो? कोइंसिडेंट हो। अब कोइंसिडेंट के लिए हम लोग को पता होना चाहिए जो A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के बराबर होना चाहिए। ऐसे केसेस में मैं बताना चाहूँगा एक ट्रिक। इस पूरी इक्वेशन को किसी एक सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कैसा सोल्यूशन लाना है हम लोगों को? कोइंसिडेंट लाना है। लाइंस कोइंसिडेंट हैं। अगर कंसीडर द लीनियर इक्वेशन, 2 से कर रहा हूँ मैं। 2 7 14, 2 5 टाइम्स 10
2 4 टाइम्स 8, यहाँ पे 8 2 कितना होगा आपका 14, B2 विल बी -10 एंड C2 विल बी -8। ओके, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो A1/A2 है वो कितना आएगा आपका 7/14, दैट इज़ 1/2। B1/B2 कितना आएगा आपका -5/10, दैट इज़ 1/2। एंड C1/C2 कितना आएगा आपका -4/-8, दैट इज़ 1/2। हेयर हम लोग देख पा रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 is equal to C1/C2. So the lines represented by pair are coincident. तो ये कैसी लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं? जब तीनों इक्वल होते हैं तो कैसी लाइनें होती हैं? कोइंसिडेंट होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, अब हमें रिप्रेजेंट कराना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्टार्टिंग के दो इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पीछे किया था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लास्ट वाले नंबर में उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट वाले नंबर में उस नंबर से मल्टीप्लाई ना करके कुछ ऐसी अपने मन से चेंजेस कर देंगे। 4 की जगह 5 कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो A1 ये सब कुछ सेम रहेगा, A2 भी रहेगा, B2 भी रहेगा, लेकिन C2 अब क्या हो जाएगा -5। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीज़न है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग को C1/C2 का रेशियो A1/A2 और B1/B2 के रेशियो को इक्वल नहीं लाना था, इसलिए हम लोग ने ऐसा किया। यहाँ पे आया आपका 4/5, तो जो रेशियो था C1/C2 का वो इन दोनों से कैसे आ गया, अलग आ गया। A1/A2 सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम नंबर से जैसे पीछे किया था मल्टीप्लाई, फर्स्ट 2 में करना है लेकिन लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन C1/C2 को इक्वल नहीं है। तो लाइन रिप्रेजेंटेड बाय पेयर आर कैसी लाइन्स हो जाएंगी अभी, ये पैरेलल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी अभी, ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो याद रखना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में दिमाग का ज़्यादा यूज़ है, कॉन्सेप्ट इसमें यही लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। ओके, हम लोग को पता है बहुत अच्छी तरीके से यूनिक सोल्यूशन के लिए A1/A2 और B1/B2 का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। एक इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, हम लोग सीधे कह देते हैं A1 कितना है आपका 4 है, B1 कितना है आपका P है, C1 कितना है आपका 8 है। नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x + 2y + 2 = 0। यहाँ पे A2 कितना है आपका 2 है, B2 कितना है आपका 2 है, C2 कितना है आपका फिर से 2 है। ओके, अब हम लोग से कहा है यूनिक सोल्यूशन है, हम लोग को पता होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। A1 की वैल्यू 4, A2 की 2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 की वैल्यू P, B2 की वैल्यू 2, कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा। 2 इज नॉट इज इक्वल टू P/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि P की वैल्यू 4 ना हो, बस P की वैल्यू क्या ना हो 4 ना हो, बस और कुछ भी हो। P की वैल्यू अगर 4 हो गई तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा, यानी कि P इज़ नॉट इज इक्वल टू 4। P की वैल्यू जो है वो यूनिक सोल्यूशन के लिए 4 ना हो और कुछ भी हो। ओके, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4। So for all real values of P except 4, given pair has unique solution। 4 के अलावा कोई भी वैल्यू रखो, सब वैल्यू पे जो पेयर है वो कैसा सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। क्लियर है?
अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग, सेम टू सेम यही कंडीशन के साथ है, इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा हूँ पूरा। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 3p माइनस 2x, 3p माइनस 2x प्लस माइनस py प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हेयर a1 इज इक्वल टू कंप्लीट कोफिशिएंट ऑफ x will be a1, b1 will be minus p and c1 will be 3, and second one is 2px plus y minus 5 is equal to 0. So a2 will be 2, b2 will be 1, coefficient of y is 1, and c2 will be minus 5. As we know, for unique solution a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2. अब हम लोग को पता होना चाहिए जो a1 की वैल्यू है वो कितनी है, 3p माइनस 2, a2 की वैल्यू 2p, b1 की वैल्यू माइनस p, b2 की वैल्यू इट इज़ 1। ओके, अब हम लोग को उसको सॉल्व करना है। 3p माइनस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से आंसर विल बी सेम, एंड 2p की p से करेंगे आंसर विल बी 2p स्क्वायर, एंड इट इज़ नॉट इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान रखेंगे, माइनस 2p स्क्वायर विल बी पॉजिटिव 2p स्क्वायर, एंड इट विल बी 3p, एंड इट विल बी माइनस 2, एंड इट शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0 अगेन। ओके, अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 इंटू 2 फैक्टराइज तो करना आता ही होगा, फिर से देख लेते हैं, लेकिन माइनस 2 इंटू 2 इट विल बी माइनस 4। 4 को ऐसे फैक्टर करें कि 3 आ जाए, प्लस का 3 आ जाए, फोर माइनस वन विल बी 3, एंड 4 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 4। ओके, टू पी स्क्वायर प्लस 4p minus p minus 2 is not is equal to 0. We will take 2p common, p minus 2 and minus 1 common, p plus 2 is not is equal to 0. We will get p plus 2 and 2p minus 1 is not is equal to 0. Okay, so एक बार हम लोग रखेंगे p plus 2 is not is equal to 0, that is p is not is equal to 0, and 2p minus 1 is not is equal to 0, that is 2p is not is equal to 1, and p is not is equal to 1. Here we get two values for which given pair of equation will not possess unique solution. तो फिर से वही बात लिखेंगे, so for all real values of p except what, minus 2 and 1 upon 2, माइनस 2 और 1 अपॉन 2 के अलावा सारी वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देगी, लेकिन किस पे यूनिक सोल्यूशन नहीं देगी, माइनस 2 पे और 1 अपॉन 2 पे। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिक्स्थ एग्जाम्पल। Sixth one is find the value of k for which the following pair of linear equation have infinitely many solutions. सेम क्वेश्चन है, कंडीशन हम लोग को बस याद होनी चाहिए। इक्वेशन इज kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 12x प्लस ky minus k is equal to 0. Okay, here we get a1 is equal to k, b1 equal to 3, and c1 will be minus k minus 3. We will not ignore this sign, plus can be ignored because it will not affect the calculation, but we cannot ignore minus, so c1 will be minus k minus 3, और जब भी बाहर माइनस लगा होगा आप हमेशा क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में रख लें,
अगर सवाल सही करने हैं। What is the value of A2? It will be 12. What is the value of B2? It will be K. And what is the value of C2? It is minus K. Okay. अब हम लोग से कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम लोग को पता होना चाहिए फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं तो उस केस में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। A1/A2 दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? इट इज K, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? इट इज 12. B1/B2 इट इज 3/K, and minus K minus 3/K. Minus will be plus. Okay, now I will rub this question. अब इस क्वेश्चन को देखें बहुत ध्यान से। इट विल बी K/12, इट विल बी 3/K, इट विल बी K minus 3/K. ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट 2 को लेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे साथ में। ओके, K/12 is equal to 3/K. K into K will be K square. 12 into 3 will be 36. Square will be square root. और 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। लेकिन 6 प्लस का भी हो सकता है वो, और 6 आपका माइनस का भी हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज दिस पेयर 3/K is equal to K minus 3/K. Cross multiply 3K, K square minus 3K. ओके, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे एक चीज़ को। K कॉमन ले रहा हूँ, वैसे तो हम लोग K से यहाँ K काट सकते थे, K से K कैंसिल हो जाएगा। 3 is equal to K minus 3 and K will be 6. ओके, K will be 6. कौन सी वैल्यू कॉमन आई है अब हमारी? देखें, यहाँ प्लस माइनस 6 आया है, वहाँ 6 आया है, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर है। हैंस द गिवन पेयर, जो इक्वेशन दी थी पहले, जो गिवन पेयर है विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर K इज इक्वल टू 6। तो गिवन पेयर के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे किस वैल्यू पे? K इक्वल टू 6। कॉमन वैल्यू लेंगे, यहाँ प्लस माइनस 6 है, यहाँ 6 है, तो 6 लिया हमने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड वन। सेकेंड, x प्लस K plus 1y plus 5 is equal to 0, and here A1 will be 1, B1 will be K plus 1. अब यहाँ प्लस लगा हुआ इसलिए मैंने साइन को नहीं लगाया है। C1 will be 5. सेकेंड इक्वेशन इज K plus 1x plus 9y is equal to 8K minus 1. अब यहाँ पे 8K minus 1 है, ये 8K minus 1 उठा के हम लोग को यहाँ शिफ्ट करना होगा कंप्लीट, तो इट विल बी माइनस 8K minus 1। मैंने ब्रैकेट ही लगा दी है क्योंकि माइनस 8K प्लस 1 होता, तो मैंने बाहर माइनस कॉमन लेके ऐसा लिख दिया। तो A2 विल बी K plus 1, B2 विल बी 9 एंड C2 विल बी माइनस 8K minus 1। ओके, अब फिर से वही बात हम लोग को पता है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर किसी भी पेयर के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं तो इन दैट केस A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2 एंड इट विल बी इक्वल टू C1/C2। ओके, नाउ वी विल प्लेस वैल्यू ऑफ A1, A2, B1, B2 and C1, C2. What is the value of A1? What is the value of A1? It is
1. What is the value of A2? It is k plus 1. What is the value of B1? It is k plus 1. And B2, it is 9. C1 upon C2. What is the value of C1? It is 5. And what is the value of C2? It is minus 8k minus 1. Okay. Now we will take first two values and first and third value again. ठीक है, फर्स्ट टू वैल्यू लेंगे और फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू लेंगे दोबारा से. 1 upon k plus 1 is equal to k plus 1 upon 9. We will do cross multiply. K plus 1 into k plus 1. It will be k plus 1 whole square. And k plus 1 will be square root of 9. It will be plus and minus 3. Okay. We will assume positive value of 3 and one negative value of 3 plus minus 3. Okay. K will be 2 and k will be minus 4. K will be 2, k will be minus 4. And what about these last two values? K plus 1 upon 9 will be equal to 5 upon minus 8k plus 1 कर दिया मैंने, माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस विल बी प्लस. अब k plus 1 will be multiplied by minus 8k plus 1, 9 5 times 45, minus 8k square plus k minus 8k plus 1 is equal to 45. Okay. बट यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, स्क्वायर कैसे हो गया ये, मैंने गलती कर दी भाई. हम लोग ने फर्स्ट, ओके होल्ड ऑन, वी विल टेक फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड. हम लोगों ने सेकेंड थर्ड ले लिया, तो वी विल टेक फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू. 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 8k प्लस 1. माइनस 8k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5k प्लस 5. कितना हो जाएगा 5 और 8 हमारा यहाँ पे. 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? C1 की वैल्यू कितनी थी हमारे यहाँ पे, -5 थी, तो माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, तो इट विल बी k 8k माइनस 1. 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 5. 8k माइनस 5k इट विल बी 3k, इट विल बी 6, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2. ओके. अब यहाँ पे कॉमन वैल्यू बताएंगे कौन सी आ रही है. कॉमन वैल्यू कितनी आ रही है जो दोनों इक्वेशंस में आ रही है, 2. Hence given pair has infinitely many solution for what value of k? k is equal to 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे. के लिए क्या रखेंगे जब 2 रखेंगे. ओके. नेक्स्ट वन इज सेवेंथ एग्जाम्पल नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given pair have no solution. Same question. kx plus 3y is equal to k minus 2. फिर वही बात, अब लोग हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे, फिर से माइनस प्लेस कर देंगे और k minus 2 विल बी सेम. a1 विल बी k, a2 विल बी 3, b1 विल बी 3 and c1 विल बी minus k minus 2. okay. Next equation is 12x plus ky is equal to k.
12x plus ky minus k is equal to 0. A1 will be 12, B1 will be k, and C1 will be minus k. Okay. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे उन्होंने हम लोग से कहा है हैज़ नो सोल्यूशन, जो पेयर है इक्वेशन का हैज़ नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन पता होना चाहिए हम लोगों को, जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल होगा, जो कि C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। A1/A2 की वैल्यू है आपकी k/12, B1/B2 की वैल्यू है 3/k, C1/C2 की वैल्यू है -k-2/-k, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड। We will take first two values, k/12 is equal to 3/k, k is equal to 36, k will be √36 and k will be plus minus 6, k will be plus minus 6, and 3/k is equal to k minus 2/k, k से k हट जाएगा यहाँ पे, तो 3 will be k minus 2 and k will be 5. k is not equal to 5. समझ गए? वैसे फॉर k is equal to 6 and -6 given pair has no solution। अगर हम इसको ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमसे वैल्यू पूछिए। तो k की वैल्यू 6 और -6 रखने पे इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x plus y is equal to 1, a1 will be 3, b1 will be 1 and c1 will be 1 -1। हम लोग को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन इज 2x minus 1k, 2k minus 1x plus k minus 1y is equal to 2k plus 1। Here a2 will be 2k minus 1 and b2 will be k minus 1 and c2 will be, हम लोग को उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। 2k minus 1x plus k minus 1y minus 2k plus 1 is equal to 0। Here a2 will be 2k minus 1, b2 will be k minus 1, c2 will be minus 2k plus 1। अब फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन दी हुई है। a1 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? इट इज 3। What is the value of a2? It is 2k minus 1, b1 1, b2 k minus 1, c1 minus 1, c2 minus 2k plus 1 not equal to। अब हम लोग फर्स्ट टू वैल्यूज लेंगे। 3/2k minus 1 is equal to 1/k minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k minus 1, 2k minus 1, 3k minus 3 is equal to 2k minus 1, 3k minus 2k will be k, minus 3 will be plus 3, 1 minus 1 plus 3 will be 2। What is the value of k? K will be 2। And now we will take first and last value।
we will take first and last values. Last value. Second and last. 1 upon k minus 1 is not is equal to 1 upon 2k plus 1. 2k plus 1 is equal not is equal to k minus 1. 2k minus k minus 1 minus 1. K is not is equal to minus 2. Okay. For k is equal to 2, गिवन पेयर हैज़ नो सोल्यूशन, तो k की वैल्यू 2 होने पे इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. क्लियर. नाउ वी विल डू एग्जाम्पल 8. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p if the lines represented by the equation 3x minus y minus 5 equal to 0 and 6x minus 2y minus p equal to 0 are parallel. Okay. अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 8. इक्वेशन इज गिवन 3x minus y minus 5 equal to 0. a1 will be 3, b1 will be minus 1, c1 will be minus 5. Next equation is 6x minus 2y minus p is equal to 0. Then a2 will be 6, b2 will be minus 2 and c2 will be minus p. Okay. अब पैरेलल है तो हम लोग के लिए पता होना चाहिए और पैरेलल for parallel a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2. What is the value of a1? 3. What is the value of a2? It is 6. b1 minus 1, b2 will be minus 2 and c1 is minus 5 and c2 is minus p. Minus minus will be cancelled, so we will get, यहाँ इसको ले लेते हैं, इसको ले लें, किसी दो को ले लें, फर्स्ट थर्ड ले लें या सेकंड थर्ड ले लें. हम लोग को p की वैल्यू लानी है. 1 upon 2 is equal to 5 upon p is not is equal to 5 upon 2. p is not is equal to 10. p is not is equal to 10. So given pair will be parallel. जो दोनों लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी. कब? बस p की वैल्यू क्या ना हो, 10 ना हो. फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 10. बस p की वैल्यू क्या ना हो, 10 ना हो, उसके अलावा कोई भी हो. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे. इसके बाद 9th क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं लैम्डा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 7. लैम्डा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 7. We will shift minus 7 to left hand side. It will be positive. Then a1 will be lambda. It is called lambda. It is a constant. b1 is 3 and c1 will be 7. अच्छे सोच रहे होंगे लैम्डा चीटा मीटा सब आ गया है, अभी बहुत कुछ आएगा. ये लैम्डा है वैसे. अब नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14. 2x plus 6y minus 14 is equal to 0. Then a2 will be 2, b2 will be 6 and c2 will be minus 14. Okay. अब हम लोग से कह रहे हैं इस क्वेश्चन में फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है टू हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1
इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि हम लोग को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि ये 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग से कहा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हम लोग को पता है कि क्या कंडीशन होती है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। कंडीशन क्या होगी, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. What is the value of A1? It is lambda. What is the value of A2? It is 2. B1 3/6. C1 7/-40. Lambda/2 is equal to B1 3. It is 3. 3/6. 6 lambda is equal to 6. Lambda is equal to 1. Lambda is equal to 1 and 3/6 is equal to 7/-14. For infinite dimension, all values should be equal. It is 1/2 and it is -1/2. पॉसिबल है क्या 1/2 -1/2 बराबर हो? नहीं पॉसिबल है, यानी कि यहाँ कंडीशन फुलफिल हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगर ये सब बराबर आ जाते रेशियो, लैम्डा की जगह तो 1 आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट के दो रेशियो इक्वली नहीं आ रहा है मेरे। लैम्डा की वैल्यू है हमारी, ये बराबर ही नहीं आया यहाँ पे। बराबर आ जाते तो हम लोग कह देते कि B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, विच इज़ नॉट ट्रू। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो उसने बात कही है वो गलत कही है, क्योंकि लैम्डा की जगह 1 तो आ रहा है हमारा, लेकिन ये दोनों इक्वल कहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर ऐसे नहीं तो एक चीज़ और भी देखनी पड़ेगी। अगर हम लैम्डा की जगह 1 लगा दें, लैम्डा की जगह 1 लगा दें, लैम्डा की जगह कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है -1/2। ये भी तो गलत ही आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 -1/2 बराबर हो नहीं सकते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। For which value of lambda do the pair have no solution, infinitely many solution, unique solution? सारी कंडीशन दी हुई है इसमें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन क्या है। लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हियर A1 विल बी लैम्डा, B1 विल बी 1 एंड C1 विल बी माइनस लैम्डा स्क्वायर। ओके, and next equation is x plus lambda y is equal to 1, that is x plus lambda y minus 1 is equal to 0. A2 will be 1, B2 will be lambda and C2 will be minus 1. ठीक है, पहले कंडीशन में कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो हम लोग को पता होना चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है, तो पहले हम लोग A1/A2 लेंगे B1/B2 के, एंड जो A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू C1/C2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? इट इज लैम्डा अपॉन 1 upon lambda. Lambda square will be 1, lambda will be square root of 1, that is plus minus 1.
ओके। एंड सेकेंड वन A1 अपॉन A2, यानी कि लैम्डा अपॉन 1 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, लैम्डा is not is equal to lambda square, lambda will be placed at LHS is not is equal to 0. We will take common lambda, lambda minus 1 is not is equal to 0. दो फैक्टर हो गए, या तो लैम्डा 0 के इक्वल ना हो, इन दैट केस लैम्डा इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा माइनस 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा 0 के इक्वल ना हो और लैम्डा 1 के भी इक्वल ना हो, माइनस विल बी पॉजिटिव। ओके, तो कॉमन क्या है यहाँ पे देखेंगे, प्लस माइनस 1, और यहाँ पे 0,1। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो लिख देंगे हेंस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 गिवन पेयर हैज़ नो सोल्यूशन, यानी कि लैम्डा की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो हम लोग कुछ नहीं बदलना है, फिर यहाँ पे देखना है हम लोग को, अब इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन लाने हैं। अब हम लोग को पता होना चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन माइनस 1। ओके, we will take first two values, lambda upon 1 is equal to 1 upon lambda, lambda square is equal to 1, lambda will be plus minus 1, lambda will be plus minus 1, and with the help of last two values 1 upon lambda is equal to lambda square upon 1, lambda 1 upon lambda, lambda upon 1, B1 upon B2, A1 upon A2 is equal to and B1 upon B2 1 upon lambda is equal to lambda square upon 1, तो lambda square is equal to 1, एंड इस कंडीशन से क्या आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू से, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू से अब क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, लैम्डा विल बी लैम्डा स्क्वायर, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन ले लो तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे हैं? इस केस में तो लैम्डा 0 होगा या फिर लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू -1 + 1 आ रही है, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, तो कॉमन क्या है, 1 है। सो और लैम्डा इज इक्वल टू 1 गिवन पेयर हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, कॉमन वैल्यू लेंगे जो दोनों में आ रही है, 1 इसमें 1 + 1 -1 आ रहा है यहाँ पे ना, सी आ रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 - 1, यहाँ 1 और 0 आ रहा है, तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 गिवन पेयर हैव infinitely many solution। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है हम लोगों से नो यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग को पता है यूनिक सॉल्यूशन में फर्स्ट टू इक्वल नहीं होते हैं, A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बस सेम करना है, सिर्फ नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, जो लैम्डा है वो 1 और -1 के इक्वल होने चाहिए। सो फॉर लैम्डा इज नॉट इज इक्वल, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, all real values of lambda, sorry, so for all real values of lambda except इसके अलावा 1 and -1,
गिवन पेयर है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा पेयर का? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, so examples are completed. In next lecture we will discuss about exercise 3.1. Hope you are getting all sums correctly. Thank you students.